चित्तवृत्तिनिरोधः योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तियों का निरोध अर्थात मन की समाप्ति है योग। बड़ी सरल सीधी संक्षिप्त परिभाषा पतंजलि ने की। इससे ज्यादा सुंदर और कोई परिभाषा योग की नहीं हो सकती। अन्य लोगों ने भांति भांति से परिभाषित किया है। कोई कहता है परमात्मा से जुड़ जाना योग है, कोई कहता है आत्मा परमात्मा का संयोग योग है, और कई कई तरह की परिभाषाएं हैं। पतंजलि सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे एक भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते जो अनावश्यक है। यहां तक कि ईश्वर शब्द को भी वे बीच में नहीं लाते। सीधी सीधी बात, मन की समाप्ति है योग। इस परिभाषा पर बोलते हुए हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो ने समझाया है, योगा इज द सीजेशन ऑफ माइंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, द बेस्ट। इन मैनी वेज योगा हैज बीन डिफाइंड। देयर आर मैनी डेफिनेशंस। सम से योगा इज द मीटिंग ऑफ द माइंड विद द डिवाइन, hence it is called yoga. Yoga means meeting, joining together. Some say that yoga means dropping the ego because ego is the barrier. The moment you drop ego, you are joined to the divine. You were already joined only because of the ego. It appeared that you were disconnected. And there are many other definitions, but Patanjali's is the most scientific. He says, yoga is the cessation of mind. Yoga is the state of no mind. The word mind covers all. Your egos, your desires, your hopes, your philosophies, your religions, your scriptures. Mind covers all. Whatsoever you think is mind, all that is known, all that can be known, all that is knowable is within mind. Cessation of the mind means cessation of the known, cessation of the knowable. It is a jump into the unknown. When there is no mind, you are in the unknown. Yoga is a jump into the unknown. It will not be right to say unknown, rather unknowable. What is the mind? What is the mind doing there? What it is? Ordinarily, we think that mind is something substantial there inside the head. Patanjali doesn't agree, and no one who has ever known the insides of the mind will agree. Modern science also doesn't agree. Mind is not something substantial inside the head. Mind is just a function, just an activity. You walk, and I say you are walking. What is this walking? If you stop walking, then where will be your walking? If you sit down, where the walking has gone. Walking is nothing substantial, it is only an activity. So while you are sitting, no one can ask you, where have you put your walking? Just now you are walking, so where the walking has gone? You will laugh, you will say, walking is not something substantial, it is just an activity. I can walk, I can again walk, and I can stop. It is only an activity. Mind is also just like that, only an activity. But because of the word mind, it appears as if something substantial is there. It is better to call it minding, just like walking. Mind means minding. Mind means thinking. It is an activity. And cessation of the mind is yoga. ये जो निरंतर गतिमान है हमारे भीतर, विचारों की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो निरंतर चल रही है, इसका नाम है मन। और इसका बंद हो जाना योग की अवस्था है। यह मन कोई वस्तु नहीं है, और इसलिए अगर हम उसे कोई वस्तु मान के चले, तब हम उससे कभी भी मुक्त ना हो सकेंगे।
लोग मन से लड़ने लगते हैं, अपने मन के विरोधी हो जाते हैं, तब वे मन को कभी भी नहीं जीत पाते। इस बात को गौर से समझना। एक अद्भुत जैन फकीर हुआ बोधि धर्म। सम्राट उसके पास आया और उसने कहा कि मेरा चित्त बड़ा अशांत है, मैं बहुत बेचैन और व्यग्र रहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। बोधि धर्म ने कहा, कल सुबह 4 बजे आना, तुम्हारे मन को ठिकाने लगा दूंगा। वो सम्राट थोड़ा चौंका। एक फकीर से ऐसा उत्तर अपेक्षित ना था। उस सुबह 4 बजे, और बोधि धर्म का सुनो, अकेले आना, ये फौज फांटा सेनापति इत्यादि कोई साथ में ना आए, तुम्हारे मन से निपट ही लूंगा। सम्राट रात चैन से सो न सका। जाना कि नहीं इस आदमी के पास, कोई खतरनाक षड्यंत्र तो ना हो। लेकिन बोधि धर्म से वो बहुत आकर्षित हुआ था। उसके चेहरे की आभा, उसकी शांति, उसका आनंद, उसकी प्रफुल्लता। सुबह 4 बजे उसने हिम्मत की, अकेला पहुंचा बिना फौज फांटे के। बोधि धर्म बैठा अपने डंडे पे तेल मल रहा था। बोधि धर्म ने कहा, आ गए, मुझे डर था कहीं ना आओ, बैठो सामने मेरे यहां, देखता हूं तुम्हारे मन को अभी कैसे तुम्हें अशांत और बेचैन करता है। सम्राट थोड़ा डरा कि मारेगा, क्या करेगा ये, लेकिन अब आ ही गए थे तो प्रयोग कर लेना उचित था। बैठ गया। बोधि धर्म का रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, और आराम से बैठो और भीतर अपने मन को खोज के बताओ कहां है। मिल जाए तो मुझे इशारा कर देना, बस एक डंडा दूंगा और सदा सदा के लिए निरोध हो जाएगा। इतना जागरूक सम्राट जीवन में कभी ना हुआ था। खतरे के क्षणों में हम बहुत सजग हो जाते हैं। कई गुरुओं ने उससे कहा था कि सजगता साधो, जागरूकता साधो, साक्षी भाव साधो, लेकिन कभी साध ना पाया था। आज अपने आप डर के मारे सद गई, भीतर ढूंढने लगा। बोधि धर्म ने कहा, कहां कहां तुम्हारी बेचैनी है, तनाव है, जरा गौर से खोज लो, ये मन है कहां, ठिकाने आज उसे लगा ही देना है। जैसे जैसे वो सजग हुआ, अपने भीतर की बेचैनी को, विचारों की प्रक्रिया को देखने लगा, आती जाती भावनाओं को निहारने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि वे विचार, वे भाव, वे धीरे धीरे सब विदा हो गए। एक सन्नाटा रह गया, एक शून्यता रह गई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। कोई आधा घंटे बाद बोधि धर्म ने उसे हिलाया। वो कहा, क्या हुआ, तुम तो खो ही गए बिल्कुल, मिला कि नहीं वो तुम्हारा दुश्मन मन जो तुम्हें बेचैन और व्यग्र करता है। सम्राट ने आंखें खोली, चरणों में झुक गया। उसने कहा कि सच, आपने उसे समाप्त कर ही दिया। बोधि धर्म ने कहा, इस बात को समझो, जितने ज्यादा तुम मूर्छित होते हो उतना ही मन होता है। मन अर्थात एक प्रक्रिया विचारों का, एक ऊहापोह भावनाओं की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की। जितने ज्यादा तुम सजग होते हो उतना ही मन विदा हो जाता है। अवलोकन मन विरोधी है, अमन की अवस्था उपलब्ध होने लगती है। तुम जागरूक बनो, सूत्र तुम्हारे हाथ में आ गया, जाओ और इसको साधो। अमन की वह अवस्था अवलोकन से प्राप्त होती है। ना तो मन को सहयोग करना और ना ही मन के विरोधी बनना। मन से दुश्मनी भी नहीं, मन से दोस्ती भी नहीं, उपेक्षा भाव अपनाना, और तब तुम पाओगे मन की वृत्तियां क्रमशः विदा होने लगी। न आस्तिकता चाहिए, न नास्तिकता, एक वैज्ञानिकता चाहिए, एक निरीक्षण करने की क्षमता चाहिए। पतंजलि के अनुसार हमारे चित्त की 5 प्रकार की भूमियां हैं। इसमें से प्रथम 2 भूमि वालों के लिए तो योग की साधना नहीं है। तीसरी भूमि से योग की साधना शुरू की जा सकती है, योग का आरंभ हो सकता है। चौथी और 5वीं समाधि के अनुकूल हैं। इन 5 नामों को समझना। पहला है मूढ़, तमस प्रधान। यह भ्रमित और आलसी होता है, भयभीत रहता है, तंद्रा ज्यादा घेरती है, बुद्धिहीन होता है, कामी और क्रोधी ज्यादा होता है। मूढ़ व्यक्ति के लिए योग नहीं है।
दूसरी चित्त की भूमि है जिसे कहते हैं पारिभाषिक शब्दों में क्षिप्त। क्षिप्त का अर्थ है बहुत ज्यादा रजस, बहुत ज्यादा चंचलता। ये लोग चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, संसार उन्मुख होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षाओं से भरे, चालाक और राजनीतिक होते हैं। संपन्नता के प्रति विशेष इनका झुकाव होता है। लोभी प्रवृत्ति, मोह राग द्वेष से पीड़ित होते हैं। ये भी योग में गति नहीं कर सकते। तीसरी भूमि है विक्षिप्त। आज की आधुनिक भाषा में विक्षिप्त शब्द का जैसा प्रयोग किया जाता है पागल के लिए, संस्कृत भाषा में उसका वैसा अर्थ नहीं है। क्षिप्त से ज्यादा बेहतर है विक्षिप्त, विशेष प्रकार के क्षिप्त। इनमें भी विक्षेप होते हैं, लेकिन कभी कभी ये शांति के क्षणों को भी जानते हैं। तो विक्षिप्त का अर्थ है सत्व प्रधान, ज्यादातर रजस में जीता है, लेकिन कभी कभी क्षणिक स्थिरता भी उपलब्ध होती है। ये लोग प्रसन्नता, क्षमा, धैर्य, दया, उत्साह, ऊर्जा आदि सात्विक गुणों से ओतप्रोत होते हैं। यहां से योग का आरंभ हो सकता है। चौथी भूमि है एकाग्र अथवा संप्रज्ञात। ये लोग तटस्थ भाव में जीते हैं, साक्षी भाव इनके भीतर घना होता है, और जिस विषय का अनुभव करते हैं उसका यथार्थ ज्ञान, उसका सम्यक बोध इन्हें होता है। इन्हें हम कह सकते हैं ध्यानपूर्ण लोग। पांचवी भूमि है निरुद्ध, जहां सारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया। यह असंप्रज्ञात समाधि अथवा परम वैराग्य कहलाती है। इसमें स्वरूप का यथार्थ बोध होता है। चौथी भूमि में विषय का ज्ञान होता है सही सही। पांचवी भूमि में स्वयं का, विषय का, सब्जेक्टिव नॉलेज घटित होती है। देखना तुम कहां हो। सामान्य लोग मूढ़ता की अवस्था में जी रहे होते हैं या क्षिप्त अवस्था में होते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाली एक लंबी ट्रेन में सवार हुआ। एसी फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट, सामने की सीट पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसने देखा कि युवक जो सवार हुआ है, एक 15-20 मिनट बाद उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने दोनों घुटनों में सिर दबा के नसरुद्दीन हिचकियां भर रहा है। वो वृद्ध महिला ने सोचा कि पता नहीं परिजनों से बिछुड़ के आया, कोई कठिनाई घटित हुई होगी, बीच में बोलना ठीक नहीं। रात हुई, वह वृद्ध महिला सो गई। वह चकित हुई जब सुबह उसकी नींद खुली। नसरुद्दीन वैसा ही बैठा, घुटनों में सिर देकर रो रहा था। हिचकियां पर हिचकियां आ रही थी, बार बार आंसू पहुंचता। एक टॉवेल पूरा गीला हो चुका था, दूसरा टॉवेल उसने निकाल लिया था आंसू पहुंचने के लिए। उस महिला ने सोचा हद हो गई, ये आदमी रात भर से रो रहा है, हुआ क्या इसको। लेकिन अजनबी आदमी है, बीच में कुछ बोलना ठीक नहीं, पता नहीं कितना दुख है, कहीं कुछ कह के उसके और घाव को ना छेड़ दूं, इसलिए वो महिला चुप रही। फिर उससे ना रहा गया। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन आ गया, नसरुद्दीन रोए ही जा रहा। लंबी यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की। आखिर उस बुढ़िया से ना रहा गया। उसने कहा बेटा कुछ कहो अपना दुख, शायद कहने से ही हल्का हो जाए। नसरुद्दीन ने क्या कहूं, तुम मेरी मदद ना कर सकोगी। फिर उसने कहा कह तो दो, ना सही मदद कर पाऊं। नसरुद्दीन ने कहा कि ट्रेन में बैठने के 15 मिनट बाद मुझे पता चला कि मैं गलत ट्रेन में सवार हो गया हूं। हमें नसरुद्दीन पर हंसी आती है, लेकिन हम भी गलत ट्रेन में सवार हैं। हम जिसे चित्त कह रहे हैं, वो जो चित्त वृत्तियों की बोगियां हैं, हमें बिल्कुल गलत दिशा में ले जा रही हैं। हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन से हम उतर नहीं रहे। पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध है, इस ट्रेन से नीचे उतर आओ। इस दुख की लंबी यात्रा को समाप्त किया जा सकता है। योग उसी की विधि है। धन्यवाद।